आज का टॉपिक पता है आप सबको क्या है? क्या होता है स्ट्रेस? किसी को पता है स्ट्रेस? व्हाट इज स्ट्रेस? क्या होता है तनाव? बहुत सारे काम आ जाते हैं जिसकी वजह से हम मेन फोकस नहीं कर पाते। वेरी गुड। लैक ऑफ कंसंट्रेशन कॉजेज यस मैम। तनाव। माइंड को कवर नहीं करता कि करना क्या है। वेरी गुड। हैंग हो जाता है ये स्ट्रेस भी आ गए, स्ट्रेस भी आ गए। Change causes stress or change releases the stress? It depends on situation ना। जैसे any example? कई बार चेंज से स्ट्रेस कम भी होता है और कई बार चेंज से स्ट्रेस बढ़ता भी। वो डिपेंड करता है कि जो चेंज हमने लिया है वहाँ की कंडीशन फेवरेबल है या नहीं, और हम उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं। Whenever there is unknown change, it causes stress. Yes. When we acknowledgeably accept the change, it releases the stress. So सबसे अच्छी चीज है whenever you create a change, communicate it, educate people around you so that it doesn't causes stress to anybody. We really don't know, maybe something which causes stress to one person, it's not stress for the another person, right? It is an opportunity, it is a situation for another person. So how we handle situations, how we look at any particular situation, that causes the stress for us. So let's understand what is stress and why it's unavoidable consequence of life. Some stresses occur regardless of your actions. घर में किसी की डेथ हो गई, is it avoidable? We cannot avoid it. Some people handle it very nicely because it's a life truth. It's an evident truth of life. Nobody can avoid it. So people handle it and move on. So the lesser we think about it, the lesser is the stress. The more we think about it, the more we dwell on it, it causes more stress. The more we are dependent on the people around us, the more the stress. एक छोटे बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स के साथ ऐसा कुछ हो जाना या इमीडिएट कुछ ऐसा हो जाना is a huge one time stress because he or she doesn't even know how to handle that situation. But for us, like people who are adult, we more or less are kind of able to manage that stress. Some stresses can be prevented. Time management. अभी मैंने बोला कि 8 मिनट हम लेट हैं क्योंकि हमने टाइम मैनेज नहीं किया, एंड इट्स कॉजिंग स्ट्रेस फॉर रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स बिकॉज कोई एक टीम नहीं आ रही है या कोई एक आदमी नहीं आ रहा है. दे आर नॉट वैल्यूइंग और दे आर नॉट मैनेजिंग देयर टाइम, बट इट इज वेस्टेज फॉर अदर पीपल्स 8 मिनट और 10 मिनट्स टाइम और 15 मिनट्स टाइम बिकॉज इफ दे हैव ज्वाइंड 5 मिनट अर्ली, सो इट्स कॉजिंग देम स्ट्रेस बिकॉज दे हैव लॉस्ट 15 मिनट्स ऑफ देयर प्रीशियस टाइम. Right? Stresses can be good. At times, stresses are the best time when we develop our skills, when we develop new skills. Anybody can share कि अभी आपके पास कोई प्रॉब्लम आई और आपने उस टाइम पे एक नया स्किल डेवलप किया, आपको नहीं आता था, लेकिन जब स्ट्रेस आया, जब प्रॉब्लम आई, तो तब आपको रियलाइज हुआ कि यार ये सीखना बड़ा ज़रूरी है. Anybody has any situation, any story to share? गाड़ी कैसे सीखती है बहुत सारी लड़कियां. 80% of the females learn driving in a stress mode. Any situation, think it as an opportunity to develop a new skill. The minute you will change your thought process, आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा. Stress is always the way we look at an situation. The minute we think we cannot handle the situation, we will be in stress. The minute we think we can take hold of this situation, we will find the way. We will find the. होता है ऐसे घर में? होता है? कभी भी कोई काम नया करो, वो पहली बार कर रहे होते हो ना. So every time, do you know everything to do, how to do? हर काम कभी ना कभी तो पहली बार किया होगा ना, राइट? सो वी डोंट लुक एट दैट सिचुएशन
कि यार ये एक नया काम आया, इसको नए तरीके से करना है, सीखना है, करना है. So the minute we change our thought process of looking at the things, looking at the situations, looking at the opportunities we have, the stress is halfway gone, vanished. But अगर हम किसी सिचुएशन के बारे में बार बार सोचते रहेंगे, that causes the stress, and then हम उसका सोल्यूशन पे नहीं जाते हैं. हम जब प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा सोचते हैं, सोल्यूशन नहीं सोच पाते हैं, then it causes stress. The minute you change your mindset from problem to solution, stress is halfway gone. You have already defeated the problem. Half the problem you have already defeated. कोई भी सिचुएशन अगर आपको बार बार परेशान कर रही है या आप उसके बारे में बार बार सोच रहे हैं, that is definitely a stress, and you should actually talk to somebody who you rely on so that you can understand and find a different perspective to it. आप एक से बात कीजिए, दो से कीजिए, तीन से कीजिए, जब तक आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव नहीं मिलता आपकी उस सिचुएशन को देखने का. So the minute you will find a different perspective to look at that, you will find the stress is going away and you will find the solution to that problem. So the more you will keep doing it, the more you will be able to handle the situations in future and they won't cause any kind of stress to you in that case. Stress is a normal physiological or physical reaction to the demands of life. क्या होता है जिंदगी में स्ट्रेस क्यों होता है? बहुत सारा काम आ गया, दो ही चीजें है ना, या तो काम छोड़ के भाग जाओ या काम को कर लो. घर में बहुत सारे मेहमान आ गए, क्या ऑप्शन है? या तो खाना बना लो या खाना मंगा लो. इसके अलावा कुछ और है क्या? तो हमारे पास दो ही ऑप्शंस है, फाइट और फ्लाइट. फाइट और स्ट्रेस में होता क्या है? या तो दिमागी तौर पे हम साइकोलॉजिकल हमें परेशान करता है या फिजिकली स्ट्रेस होता है. दो ही चीजें होती है, इसके अलावा कुछ और होता है. Stress management gives you a range of tools to reset your alarm system. High levels of stress leads to health issues. So the more you will keep dwelling on the problems, the more you will think about it, the more you will be away from the solution. उतना ही आप solution से दूर जाते चले जाओगे. फिर क्या होगा? हेल्थ इश्यूज होंगे, फिर आप और ज्यादा सोचोगे उसके बारे में, फिर आप एक्सरसाइज भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, है ना. तो कैसे? फिर आप बोलोगे इसके लिए भी टाइम नहीं है, उसके लिए भी टाइम नहीं है. हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही देखते हैं. प्रॉब्लम को ना तो कभी लिखते हैं, ना उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ना ही आगे बढ़ते हैं. तभी वो वही रहती है. प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग टू गो अवे टिल द टाइम यू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर इट. You need to find a solution. You need to break down the problem into small pieces to solve it. Symptoms क्या होते हैं? बहुत बार शायद लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें स्ट्रेस हो रहा है. So these are some of the symptoms we have jotted down and these called symptoms of stress. Disbelief and shock. बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी बात को मानने से ही मना कर देते हैं. होता है ऐसे? That causes stress. क्योंकि जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस सिचुएशन को, उस रियलिटी को, तब तक क्या होगा? स्ट्रेस. टेंशन एंड इरिटेबिलिटी, राइट? इट्स अ स्ट्रेस. फियर एंड एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर. लेट्स लिव टुडे. आई नो फ्यूचर इज इंपॉर्टेंट, बट इफ यू नॉट लिव टुडे, इफ यू नॉट मेक द बेस्ट आउट ऑफ टुडे, यू विल ऑलवेज बी इनसिक्योर अबाउट योर फ्यूचर. So how you can make your future secure is making best out of today. Whatever you've been given, make the best out of it. Difficulty making decisions. When we can't make decisions, होता है stress.
उससे पूछ लेते हैं, उससे पूछते हैं, वो बताएगा क्या होगा, मम्मा से पूछ लेते हैं, पापा से पूछते हैं, उससे पूछ लेते हैं, होता है ऐसे लाइफ में। सो व्हेन यू आर नॉट एबल टू मेक योर डिसीजंस योरसेल्फ, दैट कॉजेज स्ट्रेस, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों से बात करनी है। सो द मिनट यू understand what you need to make your decisions, you need to have your data points to make your decisions, right? गलत भी होंगे लाइफ में, ऐसी बात नहीं है। Be sure of taking your decisions. The more you will take your decisions, the more you will be, data points के लिए you can ask for help, but take your own decisions. The more you will take your own decisions, the more you will be stress free. Being numb to one's feeling, बहुत बार आपने देखा है लोग, कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि दूसरे के पास ना कोई फीलिंग ही नहीं है, यू नो, ये सामने वाला ना इट्स फीलिंगलेस है। सो पीपल डू नॉट इवन रियलाइज दैट दे डू नॉट एम्पैथाइज विद अदर्स, राइट? तो एम्पैथाइज करना बहुत जरूरी है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन नॉर्मल एक्टिविटीज, लॉस ऑफ एपेटाइट, नाइटमेयर्स एंड रिकरिंग थॉट्स अबाउट द इवेंट्स, एंगर, इंक्रीज यूज ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग्स। बहुत सारे लोगों को देखा होगा शाम को घर पहुंचते ही 7 बजे ही शुरू हो जाते हैं। सैडनेस एंड अदर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, फीलिंग पावरलेस, क्राइंग, स्लीप प्रॉब्लम्स, हेडेक्स, बैक पेन्स एंड स्टमक इश्यूज। बार बार कुछ लोगों का स्टमक अपसेट हो जाता है। ट्रबल कंसंट्रेटिंग, आप सबने बताया था कि फोकस नहीं कर पाते हैं। फोकस नहीं कर पाते के अलावा देयर आर सो मेनी अदर सिम्टम्स which tells you that you are stressed. Find out your symptoms and work on them so that you can live a better life. What can you do about stress? कैसे, क्या करोगे आपके आप उसके बारे में कुछ कर पाओ? पहले तो ये जानो कि आपको स्ट्रेस कॉज क्या कर रहा है। What is the reason for your stress? क्या आपका वो रीजन एक्चुअली में आप ही का है? बहुत बार तो हम पड़ोसियों की चिंता में घुल रहे होते हैं, अरे उसकी तनख्वाह बढ़ गई। हम ये नहीं सोचते कि मेरी क्यों नहीं बढ़ी। 90% ऑफ द पीपल हैव दिस स्ट्रेस, उसकी बढ़ गई, उसकी बढ़ी है या नहीं ये भी नहीं श्योर, उसकी बढ़ी है नहीं बढ़ी ये भी श्योरिटी नहीं है, बट स्ट्रेस तो इसी चीज का हो रखा, पेट में दर्द भी हो रखा उसके चक्कर में। सो नो व्हाई यू आर स्ट्रेस्ड, लुक फॉर द वेज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इन योर लाइफ। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल प्रॉब्लम ऑन अर्थ which doesn't have a solution. You might not have it, but we do not even ask. हम बहुत बार बहुत लंबे समय तक हेल्प ही नहीं मांगते किसी से। हम उसी प्रॉब्लम को लेके अपने ही तरीके से काम करते रहते हैं जो हम कर रहे होते हैं, एंड देन वी एक्सपेक्ट कि हमें डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। डू वी गेट द डिफरेंट रिजल्ट्स इफ वी कीप डूइंग द सेम थिंग? Will we ever get the different results? मैं बाल्टी अगर कुएं में पानी भरने के लिए डालूंगी तो कुछ और आएगा क्या उसमें? We'll get the same results if we'll keep doing the same things. सबसे पहली चीज ये एक्सेप्ट कीजिए कि दुनिया के सारे सॉल्यूशंस ना मेरे पास नहीं होंगे, किसी और के पास होंगे। Let's go and ask for help. Third, keep a healthy lifestyle. Learn healthy ways to relieve stress or reduce its harmful effects. Stress at times can be really fatal and harmful. हम healthy lifestyle ही नहीं जीते। हम में से कितने लोग हैं जो शाम को घर जाके 2 घंटा वॉक करते हैं या सुबह 1 घंटा वॉक करते हैं? How many of us? 2। क्या परसेंटेज रेशियो है पूरी टीम में से? सिर्फ बचपन में किसी ने वो सुना था, हेल्दी हार्ट कहाँ रहता है, हेल्दी सोल कहाँ रहती है? सो इफ आवर बॉडी इज नॉट हेल्दी, 1, वी डू नॉट कंज्यूम द राइट फूड। हफ्ते में एक बार तो मेरे ख्याल सबके घर में जंक फूड आता होगा, खाते होंगे हम लोग, बनाते होंगे। सबके घर में बिना चीट के भी चीट होता है।
होता है सबके घर में, एक बार तो जरूर होता होगा हफ्ते में, किसी के घर में ज़्यादा होता होगा. So if we don't have the healthy habits, half of the stress comes from there. क्योंकि जब आप खाना गलत खाएंगे तो कुछ ना कुछ तो बॉडी में रहेगा. That causes more of stress because it takes us away from the right thought processes. अगर आप रात को ठीक से सोए नहीं हैं, खाना ठीक से नहीं खाया, डाइजेस्ट ठीक से नहीं हुआ, तो सुबह ठीक से उठ पाएंगे क्या? तो आधा स्ट्रेस तो सुबह ही आ गया आपको उठने से पहले ही, बिफोर इवन यू हैव स्टार्टेड योर डे. सो ट्राई एंड हैव फर्स्ट आइडेंटिफाई योर सिम्टम्स कि आपके पास जो सिम्टम्स है उनमें से है क्या, आपको क्या कॉज कर रहा है, राइट? देन एनालाइज विच वन इज कॉजिंग यू दिस स्ट्रेस, व्हाई यू आर फीलिंग स्ट्रेस बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन, राइट? हाउ यू कैन सॉर्ट दैट पर्टिकुलर रीजन. स्ट्रेस असेसमेंट. आपकी लाइफ में चेंजेस होते हैं. किसी को अगर लगता है कि मेरे को एक्यूट स्ट्रेस है, फाइंड आउट व्हाट हैव चेंज्ड इन योर लाइफ इन लास्ट 1 year. आपके लाइफ स्टाइल में क्या चेंज हुआ है, जॉट देम डाउन ऑन अ पेपर सो दैट एटलीस्ट यू कैन रियलाइज दिस इज व्हाट हैज बीन चेंज्ड इन माई लाइफ इन द पास्ट 1 year एंड व्हाई, व्हेन डिड इट चेंज, क्यों चेंज हुआ वो आपकी लाइफ में, व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट एंड हाउ यू कैन मिटिगेट दैट. शादी के बाद लाइफ चेंज होती है लोगों की, फिर किड्स होते हैं, फिर लाइफ चेंज होती है, फिर उनकी स्कूलिंग शुरू होती है, फिर लाइफ में चेंजेस होते हैं. सो देयर आर चेंजेस जो ग्रेजुअल हो तो रहे हैं हमारी लाइफ में, उससे हम भी चेंज हो रहे हैं, बट वी डू नॉट इवन रियलाइज देम एंड वी डू नॉट राइट देम डाउन हाउ टू वर्क ऑन दोज चेंजेस. हम उनसे खुद को चेंज करते रहते हैं, खुद का लाइफस्टाइल चेंज करते रहते हैं, बट उनको ठीक से असेस कैसे करना है, ठीक से मैनेज कैसे करना है, कोई भी नहीं करता. किया है? क्या किया बताओ, शेयर करो बाकियों से. एंड हाउ डिड इट हेल्प यू? बताइए, अपना एक्सपीरियंस बताइए. इट विल हेल्प पीपल. लाइव एक्सपीरियंसेस बहुत हेल्प करते हैं लोगों को. मैम अभी करंटली रहते हैं, जॉब में स्टडी भी है, बच्चे भी हैं, घर भी है, स्ट्रेस रहता ही है. मैंने मेरे काम है उन्हें डिवाइड किया, थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ हो जैसे ऑफिस में या घर पे स्टडी टाइम वेल मैनेज. टाइम मैनेजमेंट टेक्स अवे लॉट्स ऑफ योर स्ट्रेस. दैट्स व्हाई इट सेज कि अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर रहे हो अपना ठीक से, मतलब जिस समय पे जिस चीज की प्रायोरिटी है उस समय पे वही किया, बाकी सब चीजें छोड़ दी नहीं. अभी ये नहीं, हम बहुत बार क्या करते हैं ना, मल्टीटास्किंग करने लगते हैं, जबकि उस टाइम पे शायद वो जरूरी नहीं है. डू वन एट अ टाइम, डू द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ दैट एंड यू विल सी हाउ द स्ट्रेस इज गोइंग अवे. इसमें एक चीज और ऐड करी, जैसे मैं सिर्फ मेड का मैं अगर देखूँ तो मुझे लगता है कि मेरी कोई जगह घर पे जरूरत नहीं है, वो मेड भी सॉल्यूशन कर सकते हैं. तो पहले भी मेड लगाती है कि ठीक है मेरा टाइम बच रहा है, मैं उस टाइम को अपनी पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए, घर पे बच्चों पे फोकस कर सकती हूँ और मेरा वो काम मेरी मेड करेगी. थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा जाएगा बट पैसों से मैंने अपने लिए टाइम को बाय किया. Very good example of that. So most of the time we do not plan our things, right? You'll have to understand the value of the money for your 1 hour and the value you are paying against that for the work you've been doing or getting done from somebody else. जैसे मैं सिंगल हैंड करती हूँ अपना, हस्बैंड तो रहते नहीं हैं, तो मैं यहीं पर ही रहती हूँ, तो गाड़ी से अप डाउन करती हूँ. फैमिली पर आस्किंग की गई क्यों, तो इवन मैं गाड़ी से अप डाउन में ही अपनी बाकी बाहर के भी काम करती हूँ. हर चीज मेड से तो पैसे नहीं मिल सकती, तो मैंने अपने ऊपर ले लिया कि ठीक है मार्केटिंग में गाड़ी में ही जितना भी मेरा सामान रहता है कि ये रिपेयर करवाना है, ये देना है, तो गाड़ी में ही बड़ा रहता है, उससे मेरा टाइम मैनेज हो गया. So the better you'll manage your times, the better you'll manage your life. The things you'll write down, आपको समझना पड़ेगा how to manage your, that will help you manage your stress. उसके अलावा we found that there are 4 A's which helps you take your stress away. क्या क्या है वो 4?
avoid. Lots of things are there or lots of people are there, lots of other things there which you can avoid. सबको लेने की जरूरत नहीं है लाइफ में. Alter, change your methods, alter your methods of doing the things and you will see the stress is going away. आप अपना तरीका चेंज करोगे तो रिजल्ट्स भी तो चेंज होंगे ना, राइट? हम करते नहीं हैं, हम एक ही तरीके से काम करते रहते हैं, ऑल्टर नहीं करते हैं. हम बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. एक्सेप्टेंस ऑल्सो टेक्स अवे लॉट्स ऑफ स्ट्रेस. हम अडेप्ट नहीं करते हैं. डू दीज 4 थिंग्स एंड आई विल गिव यू एग्जांपल्स ऑफ एवरीथिंग व्हिच you can correlate to and you'll see how the stress goes away. Let's go back to avoid. Take control of your surroundings. बहुत बार अपनी लाइफ में ऐसा देखा है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको देखते ही गुस्सा आ जाता है. होता है? किसी के साथ हुआ ऐसा? बिना बात के. They don't have anything to do with you, but you'll look at them and you'll get angry. हम सब यहाँ तो सबके साथ हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है? होता है ना? You look at some people and you just get angry. Why do you need to? Avoid them. You don't have to deal with them. Do you really need to deal with them? Find out the ways how you can avoid them in your life. If they are causing you stress, and if you cannot avoid them, what is the next? If you cannot avoid them, if it's some of your immediate family member, avoid तो नहीं कर सकते उनको, क्या करोगे? Accept करना सीखो. कुछ लोगों के पापा मम्मी ऐसे होते हैं, वो हर बात में उंगली करते हैं. बहुत सारे देखे हैं मैंने. होता है? बुजुर्ग हो चुके होते हैं, कुछ समझ नहीं आता पर हर बात में उंगली कर रही है उनको, हर बात में ज्ञान देना है. ठीक है, वो अपने तरीके से देना चाहते हैं बिकॉज दे आर योर गार्जियंस, दे आर योर गार्जियंस, राइट? तो उनसे ज्यादा वेल विशर तो कोई भी नहीं होगा आपका. बट आई थिंक वी आर एट दैट एज और मे बी वी आर इन अ न्यू इरा ऑफ लाइफ, हमें वो समझ ही नहीं आता. होता है ऐसा? देखा है? किसी के ससुर जी होंगे, किसी की सासू माँ होंगी, किसी के चाचा ताऊ होंगे, गार्जियन है ना आपके. यू कैन नॉट अवॉइड देम बिकॉज दे आर योर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स एंड दे विल कीप डूइंग समथिंग टू अनॉइंग यू. होता है? एक्सेप्ट देम कि ये ऐसे ही है. आई डोंट हैव टू एंग्री विद देम, आई डू नॉट हैव टू रिएक्ट टू देम. लर्न टू रिस्पॉन्ड टू देम. Learn to respond to them. Do not ever react to them. Accept them कि ऐसे ही हैं. And the day you will accept him, ऐसा नहीं कि मेरे कहने से मन में सोचा. Acceptance ऐसे नहीं आता. You have to consciously work on it. कि भैया ये ऐसे ही हैं. He will not change or she will not change. I will have to change myself. कि इसका behavior, इसका nature ऐसा ही है. And at that age maybe 60-70 यही होती है उनकी ये जनरली. और ऐसा हो सकता है किसी के लाइफ पार्टनर, भाई बहन, वो भी होंगे ऐसे, होंगे किसी के ननद, किसी का जीजा. यू विल फाइंड दोज एज पीपल ऑल्सो. वो आपको बिना बात के ना चाबी करते रहेंगे, कुछ भी मतलब नहीं हो, कुछ भी बात में कुछ भी बोलेंगे. यू विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ दोज पीपल. आइदर अवॉइड देम इफ यू कैन अवॉइड देम, अदरवाइज एक्सेप्ट देम. दैट इज द ओनली वे टू डील विद दिस. अवॉइड पीपल हु बॉदर यू. सिंपल है ना? बॉदर कर रहे हैं, अवॉइड कर लो. लर्न टू से नो. हम बहुत बार ऐसे लोगों को ना नो नहीं बोलते. कोई ऐसा ही दूर का रिश्तेदार भी होगा जो उंगली करता होगा बार बार. से नो टू देम वंस. सिट विद देम, हैव अ कन्वर्सेशन, ओपन कन्वर्सेशन विद देम एंड टेल देम सॉरी, दिस टाइम आई एम टॉकिंग टू यू, नेक्स्ट टाइम आई विल पार्ट माई वेज. हम ना डरते हैं या हम उस चीज को, उन कन्वर्सेशंस को, डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस को अवॉइड करते हैं. इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव दोज डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस, पर्सनली प्रोफेशनली बोथ वेज. हम बहुत बार डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस अवॉइड करते हैं. बोलना चाह रहे होते हैं दिन में अपने आप से कम 100 बार बोलते हैं, लेट मी हैव दिस कन्वर्सेशन विद दिस पर्सन. दिस इज ही और शी डज इट एवरी टाइम द सेम वे. करते हैं. जाके 1-to-1 क्यों नहीं करते हैं? हमने अपने एनवायरमेंट को ऐसा बना लिया है कि हम बात ही नहीं करते हैं. एंड यू विल नॉट फाइंड दिस इश्यू मोर इन IT इंडस्ट्री.
IT इंडस्ट्री में जाओगे ना, वहां पे ऐसा इशू शायद आपको 2% मिलेगा, बिकॉज वहां का कल्चरली दे हैव इवॉल्व्ड नाउ, दे हैव ऑल काइंड ऑफ कन्वर्सेशंस। हम जिस समाज में जिस वहां पे रहते हैं ना, शायद हम उसका सारा कुछ साथ लेके चलते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। अगर चीजें चेंज हो गई हैं, हमें अपने रहने के जीने के तरीके भी तो चेंज करने पड़ेंगे ना। आज से 20 साल पहले जो लोग जॉब करते थे, क्या वो 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक नौकरी करने का प्रावधान था क्या? 5:30 बजे सब थैला बंद करते थे, निकल लेते थे। आज के टाइम में ऐसी सर्वाइवल होती है क्या? My father never worked after 5:30 and he expects me to do the same. My father used to be at home sharp at 5:30, sharp. 5:30 से 5:35 के बीच में मेरे फादर ने, I think 30 years he worked, and all 30 years I've never seen him later than 6 o'clock. 6 o'clock उस दिन आते थे जिस दिन सिलेंडर लेना होता था, और उस दिन हमें पता होता था आज सिलेंडर लेके आना है। आज My Tauji worked in escorts and 4:30 बजे डॉट। अभी they expect us to do the same. Can we do that? हम बहुत बार ना, बहुत सारे हम अपनी लाइफ ऑल्टरेशंस चेंज नहीं करते। So my father used to have a daily fight with me. तुम अकेली हो, तुम्हारे बिना तो फैक्ट्री नहीं चलेगी, तुम्हारे बिना तो नौकरी नहीं होगी। होता है ऐसे। One day sit with them and make them understand that this is my responsibility to finish my work and come. Otherwise, it causes stress to me. घर भी चले जाते हैं, स्ट्रेस में भी रहते हैं, क्या फायदा है उसका? यहां से 5:30 बजे ही दिमाग में 5 बजे ही घुंघरू घूमने शुरू हो जाते हैं, घर जाना है, घर जाना है, घर लेट हो गया तो घर में डांट पड़ेगी, लेट हो गया तो घर में डांट। होता है ऐसे क्योंकि हम कन्वर्सेशन नहीं करते हैं। वी नेवर हैव दोस कन्वर्सेशंस। आपकी फैमिली अंडरस्टैंड करेगी, आप सब नौकरी कर रहे हो ना, सो इफ हिज जॉब इज इंपॉर्टेंट, व्हाई योर जॉब इज नॉट इंपॉर्टेंट? इक्वली इंपॉर्टेंट ना। वी डू नॉट अंडरस्टैंड एंड वी डू नॉट ट्राई टू मेक अदर्स अंडरस्टैंड, वी डू नॉट कम्युनिकेट इवन। डिच पार्ट ऑफ योर लिस्ट। हम बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, बहुत सारी लाइफ में लिस्ट होती है, ये भी करना 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 है, वहां भी जाना है, यहाँ भी जाना है, ये भी खरीदना है, वो भी खरीदना है, 100 इंच वाली LED भी चाहिए, 4 बेडरूम का घर भी चाहिए, है ना लाइफ की लिस्ट। डज इट कॉज स्ट्रेस? बनाना है, बनाना है, बनाना है, बनाना है, करता है ना। डू वी रियली नीड ऑल दैट स्टफ? 4 बेडरूम के घर में साले 4 लोग होते हैं, मेरे घर में 3 लोग हैं, हम तीनों अलग अलग कमरे में पड़े रहते हैं। जब उससे ज्यादा स्ट्रेस होता है मुझे, तो मैं सीरियसली बता रही हूँ, उससे ज्यादा स्ट्रेस होता है। 3 घर भी, मैं 3 कमरे मैनेज करने हैं, सुबह उठ के 3 कमरों की सफाई भी करवानी है, 3 कमरों के बिस्तर ठीक करने हैं। एक कमरा ही होता तो एक ही करनी थी ना। बहुत सारी चीजें ना हम खुद बना के रखते हैं। उस दोस्त के घर भी जाना, उस रिश्तेदार के घर भी जाना, उसके यहाँ भी जाना है, सुख में भी जाना है, दुख में भी जाना है, बर्थडे में भी जाना है, उसमें भी जाना है। वी डू नॉट हैव टू हैव बीन एवरीवेयर। आज सुबह मैंने मोहित को एक एग्जाम्पल दिया। मोहित कैन डाउनसाइज हिज वर्क एंड कैन कंट्रीब्यूट टू अदर्स, जिससे बाकी लोगों की भी ग्रोथ हो, बाकी लोगों को भी नया कुछ सीखने को मिलेगा ना। अगर मैं एक पर्टिकुलर काम कर रही हूँ, सिर्फ शी इज डूइंग टैलेंट एक्विजिशन, और मेरे पास पेरोल में कुछ काम है, सो व्हाट इज बेटर? मैं एक आदमी और लेके आऊँ या मैं पेरोल का कुछ हिस्सा इसको दे दूँ कि यार ये वाला तुम करके खत्म करके दे दो, छोटा, इसको भी नया सीखने को मिलेगा, कुछ टीम को भी हेल्प हो जाएगी। व्हेन शी हैज टैलेंट एक्विजिशन का कुछ काम, सो आई टेल अदर्स कि भैया ये इंटरव्यूज है, ये लाइन अप करके दे दो, शेड्यूल करके दे दो, फॉर्म भरवा के दे दो। Which is more better? मैं इसी के पीछे पड़ी रहूं कि नहीं यही सब कुछ तुझे ही करना है, so she will never be able to do what will happen? She'll be, हम उसको डिवाइड ही नहीं करते, शेयर ही नहीं करते। फिर क्या होता है, काम कंपाइल होता जाता है, फिर वो समझ ही नहीं आता अब खत्म कैसे होगा, कभी होगा क्या खत्म। We need to break down them into smaller pieces so that we can finish those tasks. We can
सो टीम ही टीम को सपोर्ट नहीं करेगी तो चाहिए क्या? फिर 15 लोगों की टीम कैसे काम करेगी? मेरा घर तो इतना सही है, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं दूंगा, किचन तो मेरी है, वो होता है घर में, किचन में नहीं घुसने दूंगी मैं किसी को। देखा है ऐसे किसी के घर में? देखा है? मैम फिर अभी किचन में हाथ चलता भी नहीं है, लगता नहीं तुम करो खुद से। There are people, I have seen one female, she'll never let anybody enter in the kitchen. मेरे किचन में मत घुसना। And I used to wonder why? किचन में क्यों नहीं घुस? अरे यार मतलब अकेले सब में लगी हुई हो, सब काम में अकेला कर लूंगा, अकेला कर लूंगी। शेयर इट। और वो स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, फिर वो मतलब कभी उधर से एक बर्तन गिरने की आवाज आ रही है, कभी कुछ और हो रहा है, फिर देख दरवाजा पटकने की, फ्रिज का दरवाजा पटक, अरे प्लीज शेयर। एंड यू नो यू आर सिटिंग आउटसाइड, यू आर आल्सो गेटिंग स्ट्रेस कि भैया इसका काम पड़ा हुआ है। शेयर। एंड बहुत सारी चीजें नहीं है करने की जरूरत। यू ऑल आर वर्किंग। घर में अगर रोज डंडा हो कि आज डस्टिंग करके, ये करके, वो करके, सब करके जाना है, कितना स्ट्रेस होगा? डिच कर दो यार, आज डस्टिंग नहीं होगी, डस्टिंग हफ्ते में 2 बार होगी, 3 बार होगी, ऑल्टरनेट डेज पे होगी। लर्न टू डिच दोज पार्ट्स ऑफ योर लाइफ विच आर नॉन सिग्निफिकेंट, विच आर नॉन सिग्निफिकेंट। हम ढूंढते नहीं हैं उन चीजों को बारे में नहीं सोचते, एंड दे स्टार्ट कॉजिंग स्ट्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑल्टर रिस्क। बहुत सारे लोग आपके साथ हमेशा जब भी उनसे बात करोगे बदतमीजी से बात करेंगे, उल्टा जवाब देंगे। हैं ऐसे लोग, मिलते हैं कभी? मिले? सवाल कुछ भी पूछो, उनका जवाब टिपिकल होगा। क्या करना है? बात कीजिए, सबसे पहली चीज है बात कीजिए, क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे किसी का गलत बिहेवियर, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे लंबे समय तक। आप लंबे समय तक एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे बिकॉज इट्स अ बिहेवियरल थिंग, बिकॉज वो आपकी सेल्फ एस्टीम को हमेशा खराब करेगा। सेल्फ एस्टीम तो होती है ना आपकी, एंड इफ समबडी इज हैव अ रॉन्ग बिहेवियर, व्हाट विल दे डू? They'll start hitting your self-esteem every time they'll talk to you. And that is not, you cannot survive compromising your self-esteem for a longer period. And one day when if you're doing that or if you'll do that, one fine day it will burst out. और वो बहुत गलत होगा उस दिन, वो आपके लिए तो होगा ही होगा, and you'll cause more harm to others. So never do that. I would never advise to do that. Respectfully ask them to change their behavior, but you'll have to have a peaceful conversation with them. Make them understand how it impacts you. Same behavior अगर आप करो उनके साथ, so how that will impact them. Behavior है ना, behavior तो आपका भी गलत हो सकता है, right? So make them understand कि same conversation अगर मैं आपके साथ करूंगी, so how will feel? Feelings की transformation है, you have to make them understand. Understand नहीं कराओगे, submissive behavior will cause more damage. Long run में आपको तो करेगी, सामने वाले को भी करने वाली है. So conversation, communication is most important there. Communicate your feelings openly. Do not shy away to share your feelings to those people, those who matter to. अगर वो मैटर नहीं करते आपकी लाइफ में और उनका बिहेवियर खराब है, avoid them. Avoid them. If you cannot avoid them, do not accept. Talk to them. Make them understand. But अगर वो significant लोग नहीं हैं आपकी लाइफ में, avoid them. That is the best part. Manage your time better. She has already given the examples, and I think we all have those kind of examples. If we start our day early, तो हमारे पास कितने घंटे होते हैं, और अगर हम वही लेट उठे 2 घंटे, तो उस दिन कैसी फीलिंग आती है? We all know, I think. The better we manage our time, the better we'll have our results. State limits in advance. हम बहुत बार क्या करते हैं, हम अपनी लिमिट्स नहीं बांधते किसी भी काम को करने की.
आपने यहाँ से जाना है, आपने तय किया कि 500 किलोमीटर जाऊँगा, जम्मू जाना है 500 किलोमीटर है, कोई लिमिट तय करके जाते हो ना कि ऐसे ही गाड़ी चलाते हो, आज चलता जाऊँगा चलता जाऊँगा चलता जाऊँगा, कहीं भी ले जाए गाड़ी मेरी। ऑलवेज बाइंड योर लिमिट्स ना, कि या तो 500 किलोमीटर जाऊँगा या जम्मू तक जाऊँगा या भोपाल जाके रुक जाऊँगा। ऑलवेज सेट योर लिमिट्स, कि ये इन सब की शायद कोई लिमिट्स होगी कि 6:30 बजे के बाद ऑफिस से जाना है। वी ऑल डू दैट राइट, कि 8 बजे से जाना है, उससे लेट नहीं हो सकती। तो सेट योर लिमिट्स एडवांस में, कि इससे ज़्यादा देर, एक्सेप्शंस है वंस इन अ वाइल, अदरवाइज खाना 2 दाल सब्जी जो भी घर की लिमिट है वो करते हैं ना हम फिक्स। ऐसा तो नहीं है कि रोज 56 भोग बनाते हैं। हर चीज की हम लिमिट तय करते हैं। जहां जिस चीज की हम लोग लिमिट तय नहीं करेंगे वो चीज हमें प्रॉब्लम देगी। ऑलवेज दैट विल कॉज अ स्ट्रेस। ऑलवेज कीप इन माइंड दैट व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग समथिंग सेट अ लिमिट टू इट। लोगों के बिहेवियर की भी तो लिमिट तय करते हो ना मन ही मन में कहीं, कि कितना सहन करना है, इसके बाद नहीं है, होता है ऐसे। That's everywhere you need to do that. Best thing, always rehearse success. हम अपने आप से कभी ये बात करते हैं? कितने लोग करते हैं? मोहित, करते हो? हम जिस चीज में रिहर्स करेंगे ना सक्सेस, 2 भाई बहनों का कन्वर्सेशन, आज ये आर्ग्यूमेंट तो इससे जीतना है, आज ये डिस्कशन तो बॉस के साथ मैं ही जीत के आऊंगा। द मिनट यू विल स्टार्ट डूइंग दैट रिहर्सल ऑफ सक्सेस, यू विल सी हाउ कॉन्फिडेंटली यू आर देयर इन दैट कन्वर्सेशन। द मिनट यू विल गो विदाउट योर प्रिपरेशन, विदाउट रिहर्सिंग, you are going to see your results. Falsely blanking, falling down. लाइफ में जहां जीतने की जिद ठान लो कि जीतना है, रिहर्स करके देखो, अपने आप के साथ आईने में करके देखो, and you'll see the changes and you'll see how the stress goes away. The better you are prepared for that, the better you are planned and the less the stress would be. तभी बोलते हैं ना प्रिपरेशन करके जाओ। एक्सेप्ट, टॉक विद समवन, पहले एक्सेप्ट कर लो, किसी से बात कर लो। इफ यू डू नॉट हैव एन आंसर टू एनी ऑफ द प्रॉब्लम, somebody else will definitely have it. Find out and reach to that person. Forgive. जिंदगी में सबसे ज्यादा परेशानी और स्ट्रेस होता है जब हम दूसरों को माफ नहीं करते। We keep thinking about the wrong doings of others to us. उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया। Does this cause stress? होता है, होता है। माफ करने से देखो कितनी जल्दी स्ट्रेस दूर जाता है। माफ करना आसान नहीं होता, बिकॉज आप कहीं इमोशनली हर्ट होते हो, बहुत ज्यादा हर्ट होते हो। बट थिंक अबाउट इट कि माफ कर देने के बाद प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं और माफ ना करने के प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं। पुट इट ऑन पेपर, पुट इट ऑन पेपर एंड फाइंड आउट विच वन इज बेटर। हम लिखते नहीं हैं, हमारे को बहुत बुरी आदत है सबको, हम लिखते नहीं हैं। कभी कभी कोई प्रॉब्लम आई, उसको लिख के सॉल्व किया है किसी ने आज तक? एनीबडी लिख के तो सॉल्व हुई कि नहीं हुई? और जब नहीं लिखते हो तब सोचते रहते हैं कि यार अब क्या होगा। सिंपल, वी ऑल हैव द सॉल्यूशंस विद अस। हम सोचते नहीं है ठीक से, लिखेंगे ना, लिखने के बाद आपका प्रॉब्लम का स्टेटमेंट ही आप देखना 5 बार तो शायद आप अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट ठीक करोगे कि मेरी प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या, व्हाट इज कॉजिंग स्ट्रेस टू मी। So whenever you have problem or stress, something is causing stress to you, कोई चीज आप बार बार सोच रहे हो किसी भी बारे में, पर and write it down and create your exact problem statement. जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट ठीक से आ जाएगी ना, तब सोल्यूशन मिलना शुरू होगा।
80% of the time we cannot create the right problem statement. That causes the most stress in our life. माफ करेंगे तो तब पता चलेगा कि माफ करने में मेरे को क्या नुकसान है, क्या फायदा है, और माफ ना करने में क्या है. प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक. ये शायद काफी लोग करते भी हैं, काफी लोग करते हैं, अपने आप को वापस ले जाते हैं कि भैया नहीं, ठीक सोचना है. बट जहां भी नेगेटिव थॉट आए ना, एटलीस्ट वहां पे लिख के कीजिए एंड यू विल सी द चेंजेस. Whenever you have a stress problem, कुछ भी आ रहा है, लिखिए उसको कि क्यों आ रहा है और उस टाइम पे थॉट्स क्या है. Share it with someone. Somebody will help you to get into the positive frame of mind. Learn from your mistakes. हम कितनी बार अपनी गलतियां दोहराते हैं? कोई गलती दोहराई है जिंदगी में? उससे फायदा होता है, नुकसान होता है, स्ट्रेस होता है, क्या होता है? कोई गलती दोहराई है आज तक? क्या होता है जब गलती दोहराते हो? हम गलतियों से सीखते नहीं हैं. तो जब गलतियों से सीखेंगे नहीं तो स्ट्रेस तो होगा. छोटे बच्चे को भी होता है यार. वैसे क्यों होता है पता है? क्यों होता है? क्योंकि हम कहीं ना खुद से शर्मिंदा होते हैं कि साला ये पिछली बार भी किया था, फिर कर दिया. दिस इज व्हाट वी आर. उस टाइम पे सबकी कन्वर्सेशन यही होती है, कम व्हाट में, यार पिछली बार भी यही गलती की थी, अब फिर यही गलती कर दी मैंने. कभी तो वो गलती याद है, वो जानबूझ के करता था, वो गलती नहीं होती ना. हम सीखे नहीं ना उस गलती से. हमने फिर हम पता क्या करते हैं, तो वो गलती है ना. अरे गलती कर ली अब तो एक बार, बार बार थोड़ी ना करनी होती है गलती. रोज नमक गलती से नमक खाती है क्या? सीखा ना एक बार, जब नमक गलती से. सीखना नहीं, यही तो बात है ना. तो सीखना है, यही तो बोल रहे हैं, तभी तो स्ट्रेस हो रहा है. इफ यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स तो स्ट्रेस भी नहीं होगा ना. तो फिर ये तो खुद सीखना है, कोई इंजेक्शन से थोड़ी ना आएगा. गलतियों से खुद तो सीखना है. लोग तो क्या करते हैं आजकल, दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं, फिर तो स्ट्रेस में ही रहोगे. सो चूज ना व्हाट लाइफ यू वांट. You want to have the same life of stress or you want to have a stress free life? This is a choice we make. Choice है ना मेरी लाइफ की. मेरे को साफ जगह पे, साफ घर में, साफ उसमें रहना है या गंदे घर में रहना है, चॉइस है. जैसे मर्जी चूज कर लूं मैं. It's my choice to live the life I want. Nobody else can help me. If I've chosen something wrong, I'll get something wrong. मैं सब्जी लेने गई, मैंने चूज करके गलत गई, खराब भिंडी डाली उसमें टोकरी में, मुझे खराब ही मिलेगी, सही भिंडी तो नहीं मिलेगी. दुकानदार इतना तो बढ़िया नहीं है कि मेरी गलत वाली को रख के फिर बोलेगा नहीं मैडम ये तो गलत ही, सही ले जाओ. वो तो कहेगा ले जाओ मैडम, बहुत बढ़िया, आप जैसे ग्राहक तो रोज आने चाहिए मेरे पास. सो दिस इज व्हाट वी चूज बेटा. नोबडी कैन हेल्प अस इन चूजिंग. व्हाट वी विल चूज वी विल गेट दैट. मैंने आपको उस टाइम भी बताया कि अगर बिहेवियर है ना, किसी का बिहेवियर, अगर आप गलत बिहेवियर चूज कर रहे हो, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आप चूज कर रहे हो उस बिहेवियर को. सो दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू. सो इफ यू आर चूजिंग, वो आज नहीं तो कल आपको गलत चीज, आपको आज नहीं तो कल परेशान करेगी. इफ यू आर चूजिंग समथिंग रॉन्ग इन योर लाइफ, वो आज नहीं तो कल परेशान करेगी. सो बेटर sooner you improve your mistakes, sooner you learn from your mistakes, the better your life would be, or better our life would be. छोटा बच्चा है घर में, गिलास गिरा दिया, कांच का टूट गया, आप एक बार समझाओगे, दूसरी बार फिर गिरा दिया, अभी तो लगेगा ना फिर. if you'll keep making the same mistake, if you'll not learn from that mistake, कभी तो पैर भी कटेगा, फिर हाथ भी कटेगा. that's bound to happen. If we will not learn from our mistakes, that's bound to happen. Adapt, adjust your standards. हम अपने स्टैंडर्ड्स या तो बहुत कम रख लेते हैं या बहुत हाई कर लेते हैं. होता है ऐसे? कोई एग्जाम्पल देगा? Adjust your standards. कई बार हमारी एक्सपेक्टेशन सामने वाले के बीच में वो बनी रहती है.
करेगा वो हमें मतलब हमारे की जगह पे स्टैंड लेगा कुछ करेगा, बट कई बार वो ऐसा नहीं करता तो हमें लगता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन गलत है। नॉर्मली हमारी लाइफ में भी ऐसे कई बार ऐसा होता है। सिंपल एग्जांपल देते हैं स्टैंडर्ड्स का। हम सब रहते हैं कहीं ना कहीं अपने अपने घरों में, फैमिलीज में, राइट। इफ आई सेट एन एग्जाम स्टैंडर्ड फॉर कि मुझे एंटीलिया खरीदना है, क्या होगा? स्ट्रेस होगा ना, मैं तो खरीद पाऊंगी क्या? मुझे गोल्फ स्टेट में पेंट हाउस लेना है, मेरी बेवकूफ़ी है। इफ आई सेट दैट स्टैंडर्ड फॉर मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इफ आई सेट अ राइट स्टैंडर्ड कि मुझे किसी डिसेंट सी जगह पे 2 BHK 3 BHK का घर चाहिए, राइट, सो आई एम ओके विद माई स्टैंडर्ड। वो झुग्गी बनानी है, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। मैं रह सकती हूँ क्या उस लाइफस्टाइल में? रह पाऊंगी क्या? सो वी नीड टू एडजस्ट आवर स्टैंडर्ड्स द वे वी आर, द व्हाट वी कैन एक्सेप्ट एंड व्हाट वी कैन नॉट एक्सेप्ट, वेयर वी कैन नॉट रीच। हाँ, मैं हो सकता है गोल्फ स्टेट का ले सकूं, लेकिन अगर आज उसके बारे में सोचूंगी एंड इफ आई विल नॉट प्लान दैट फॉर दैट, तो मैं नहीं कर पाऊंगी। एंटीलिया तो शायद मैं नहीं खरीद पाऊंगी, उसमें तो मैं स्ट्रेस में पक्का मर जाऊंगी। खरीद पाऊंगी क्या? मेरी बेवकूफी होगी, मैं ऐसा स्टैंडर्ड सेट करूंगी अभी तो स्ट्रेस में ही मर जाऊंगी। एंटीलिया में रहने से पहले निकल जाऊंगी। बना तो लूंगी शायद, एंटीलिया में रहने से पहले निकल जाऊंगी। प्रैक्टिस थॉट स्टॉपिंग। हम बहुत बार कॉन्टिन्यूसली किसी एक थॉट को सोचते चले जाते हैं और उससे धागे आगे 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 चलते चले जाते हैं। होता है ऐसे? कोई एग्जाम्पल दोगे किसी को? कोई अभी रिसेंट में कोई हुआ हो ऐसा थॉट प्रोसेस कि शुरू कहीं और से हुआ और कहीं और पहुंच जाओ? है सबके पास, शेयर नहीं कर सकता कोई, राइट? एनीवेज, हम बहुत बार कहीं और से हम कुछ काम कर रहे होते हैं, काम करते करते एक छोटी सी थॉट, कोई स्पार्क आता है, अच्छा ये से वहां से कोई शुरू होता है, फिर घर, घर से दोस्त, दोस्त से रिश्तेदार, रिश्तेदार से फिर ऑफिस, ऑफिस से घर, रिश्तेदार, दोस्त। द थॉट प्रोसेस कीप्स गोइंग ऑन एंड फिर आता है रियलाइजेशन, आधा घंटा चला गया, काम तो हुआ ही नहीं जहाँ शुरू किया था। होता है ऐसे? सो व्हेनेवर यू स्टार्ट हैविंग दोस काइंड ऑफ कन्वर्सेशंस विद यू, learn to understand that you have to come back to your thought process. Focus हमें लाना है, nobody can help us. हम जितना अपनी thought process से ड्रिफ्ट होके कहीं और जाते हैं, हमारा टाइम मैनेजमेंट उतना खराब होता है, उतना ही ज्यादा स्ट्रेस होता है, उतना ही ज्यादा होता है। यूनिट 2 यूनिट 1 में है किसी के पास ऐसा एग्जाम्पल? नहीं, वो फिजिकली तो ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। किसी के पास एग्जाम्पल नहीं है कि थॉट शुरू कहीं और से हुआ और कहीं और पहुंच गया? होता है, लेकिन ये सबके साथ जनरली मैम ऐसा होता है, बट अभी रिसेंटली कुछ माइंड नहीं आ रहा है ऐसा। रिम्पी, आर यू देयर? यस मैम। अभी कोई ऐसा एग्जांपल है? ऐसा होता है कि थॉट प्रोसेस शुरू कहीं और से हुआ, कहीं और चला गया? हाँ, काफी बार ऐसा होता है ना। क्या करते हो फिर आप उस टाइम पे? मैं तो ऑफिस से उसी टॉपिक पे जहाँ पे स्टार्ट हुआ है उसी पे जाने की कोशिश करती हूँ, मतलब सामने वाला उसको। ये तो आपका सेल्फ थॉट प्रोसेस है, इसमें किसी दूसरे ने कुछ नहीं करना, राइट? ठीक है, थैंक यू। रीफ्रेम योर इश्यूज। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी जो स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसको लिखिए, लिख के दोबारा लिखिए एंड आप चेंज करते रहेंगे खुद ही, जब तक आपको नहीं लग रहा है कि भैया मेरी प्रॉब्लम एग्जैक्टली यही है जो मेरे को है, एंड देन यू विल फाइंड द प्रॉब्लम का सोल्यूशन। सो व्हेनेवर समथिंग इज कॉजिंग अ मेजर स्ट्रेस टू यू, प्लीज ट्राई एंड डू कि उस स्टेटमेंट को, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप लिखें पहले एक बार पेपर पे। अडॉप्ट अ मंत्रा। किसी ने कभी ऐसा कोई मंत्रा अडॉप्ट किया है कोई कि जिंदगी में जब स्ट्रेस आता है उसको कैसे डील करना है? बताओ। हाँ हाँ, कुछ भी हो सकता है, आपकी लाइफ का कोई एक वो हो सकता है ना, आपका कोई
लेट्स फोकस बार-बार इसी चीज को बोले तो भी हम जो काम कर रहे हैं उस पे फोकस कर सकते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल कर सकते हो। एक मंत्र ही होगा। कई बार बहुत भी गुस्सा आ रहा है तो काउंट करने लग जाते हैं, जैसे लाइक पानी पी लो या थोड़ा सा साइड हो जाओ कि मतलब अंदर अगर हम किसी चीज के लिए फ्रस्ट्रेटेड है ना, हम अपने आप को बोले डोंट पैनिक, तो उससे भी माइनर इफेक्ट आता है हमारे माइंड में। एक हमारे टाइम जब हमें स्ट्रेस हो रहा हो बहुत गुस्सा किसी पे, तो आप है ना म्यूजिक, आपको जिस तरह का भी म्यूजिक पसंद है आप वो लगाओ, थोड़ा सा घूमो, वॉक करो, आप धीरे धीरे खुद ही काउंट डाउन हो जाओगे कि हाँ ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब हम एक नया स्टार्टअप करते हैं। रोहित, क्या है आपका मूल मंत्र? कभी ऐसा होता है, काफी स्ट्रेस होता है और सिचुएशन काफी हाई लेवल हो जाती है, तो वहाँ से निकलना काफी मुश्किल होता है। तो कभी कभी जैसे गुरुजी होते हैं, जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, तो उन्होंने कुछ मंत्र बता रखे हैं। एक मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा, तो वो मंत्र का जाप कर लो, उससे थोड़ा सा माइंड रिलैक्स होता है। तो ऐसे मंत्र होते हैं, बंदे अपने माइंड में उसको बोलते हैं, Very जिससे काफी रिलीफ मिलता है। वेरी गुड। किसी और ने कुछ ऐसा है किसी का अपना कि भाई जब कुछ टेंशन हो तो उस टाइम पे क्या सोचना है? जो अभी इन्होंने कुछ बताया, मैंने अपनी टेस्ट के सामने डिस्प्ले भी किया हुआ है, एक पॉजिटिव था। कुछ और आपका कोई और अपना सोचा हुआ, जैसे इन लोगों का कुछ सोचा हुआ है, डोंट पैनिक, समथिंग लाइक दैट? रोहित, आपने किसी और ने यूनिट 1 2 कोई ऐसा, जब आपको स्ट्रेस हो तो आप अपने आप को क्या सेल्फ टॉक में क्या बोलेंगे? कोई सोचता है ऐसा? बताएंगे क्या क्या सोचते हो उस टाइम पे? व्हाट डू यू टेल योरसेल्फ? लंबी सांस लेके कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाते हैं, वेरी गुड। कैलकुलेट करते हैं अपने इश्यूज को बस। किसी और का? रिम्पी, पूजा? आपके पास कोई और लोग? कभी सुना है भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गया ये काम? सुना ऐसा? एक मंत्र है ना, सही बात है। ऐसे ऐसे मंत्र होते हैं लोगों के पास कि जब कोई आदमी स्ट्रेस दे रहा है ना, भाड़ में गया यार, इससे मुझे क्या लेना देना है। बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो हम सच में उसको थोड़ा सा भाड़ में जाने देते हैं और अपने काम पर फोकस कर पाते हैं। कभी वो सुना, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। These are the kind of मूल मंत्रास, remember them always। कि बहुत सारी चीजों का ना स्ट्रेस हम जबरदस्ती लेके रखते हैं, बहुत सारी चीजों का स्ट्रेस हम जबरदस्ती लेके रखते हैं। एवरीथिंग, एवरी पर्सन, एवरीथिंग इम्पॉर्टेंट? We need to choose the right things in our life which makes us grow. The things which are not making us grow are not important. So let them go to bhad. The things which are not helping us grow, let them go to bhad. You always remember. You'll laugh जब ऐसी सिचुएशन आएगी, आप हंसोगे और फिर आपको स्ट्रेस देखना कैसे दूर जाता है। This was given to be by my gynecologist। जब आपको स्ट्रेस हो ना, एक ये अपने आप को जोर से बोलना है आपने, सब कुछ गया भाड़ में। And it makes a hell lot of impact on your thought process. Your life, you start feeling live again. मुझे क्या लेना देना है सारी चीजें? If I am healthy, if I can be in a better state of mind, I can win over everything. But if I am in a stress mode, I cannot do anything. So first I have to get out of this nuisance. So ये तो गई भाड़ में चीज, जो भी है, whatever situation is, I am not bothered about this. Create an asset column. ये किया है कभी किसी ने? लाइफ की प्लानिंग किया है कभी किसी ने? हम सब चीजें वो करने के लिए बनाते हैं ना। मैंने आपसे पूछा